نام کیا بتایا تھا اس کا؟ ادونیا۔ دنیا، تم بہت جلد صلیب پر لٹکائے جاؤ گے اور تمہاری لاش اس پر لٹکی رہے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنو۔ لکھو فیصلہ، لے جاؤ اسے۔ مجھے پانی پلا دو۔ تم اپنی موت کی سزا سے خوش ہو؟ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں۔ کیا تم ہمارے خدا کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے خدا کو نہیں پہچانتا۔ اگر پہچانتے تو یہی کہتے کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مبلغ اڈونیا ہے؟ ہاں، ان کے ساتھ ان کے آدمی ہیں۔ انہیں سزائے موت ہوئی ہے۔ ویدیاس جی، کیا سوچ رہے ہو؟ ان کے لیے حیران ہوں، ان کا سمجھنا واقعی مشکل ہے۔ چلو۔ اب مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی۔ میں کب تک بت پرستی کا دکھاوا کروں؟ کب تک؟ آخر کب تک یوں ہی بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں کہ ایک طرف تو مسیح شیر اور درندوں کا شکار بنائے جائیں، دوسری طرف بہادر اکھاڑوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں۔ ہم کب تک اس حالت کو برداشت کریں؟ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے۔ ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں، لیکن میں اس راز کی پردہ پوشی کی وجہ بھی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ مسیحی نہ بت پرست، مگر مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہم ساری عمر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں، آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں، تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور، اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ جب تک شہنشاہ ہے
तकियानूस जैसे लोग भी हैं मार्टिनेस। कल जो शहंशाह रहा है, हम उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अजीज मार्टिनेस, तुम समझते हो रूम के लिए मुश्किल है एक नया शहंशाह बनाना? इस तरह तो दुनिया के सारे मुजरिमों को सजा देने से चश्मपोशी करनी पड़ेगी। अगर इस मुजरिम को सजा ना दी जाए तो और भी तो मुजरिम हैं। हमारे ऊपर जरूरी है कि हम अपने फरीजे पर अमल करें। मार्टिनेस ठीक कह रहे हैं। ये मौका गनीमत है। अगर सच पूछो तो मैं भी अब बहुत थक चुका हूँ, और ये भी नहीं कि मौत से डरता हूँ, बल्कि मौत का मुश्ताक हूँ। अलबत्ता खौफ इस बात का है शहंशाह के कत्ल के इंतकाम में वो आवाम का खून बहाएंगे, और दूसरी तरफ देखूं तो वहाँ भी कत्ले आम जारी है। बहुत अच्छी बात है, तो इन जराइम का असली मुजरिम भी सज़ा से न बचे। सुदीनानूस, मैं असलहे के साथ इनका और तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। खुदावंदा, तू गवाह है कि हमारे इस इक़दाम में फ़कत तेरी खुशनुदी है, न कि हमारे नफ्स की। तू हमें कबूल फरमा और अपनी राह में मुजाहिदत की तौफीक अता कर। आप कहते हो मसीह आसमान से ज़मीन पर नहीं आए थे? नहीं, ईसा ज़मीनी थे। न खुद खुदा, न खुदा के बेटे, बल्कि बरगुज़ीदा नबी थे। ये यूनानियों का अफसाना है कि एथिस खुदा था जो आसमान से ज़मीन पर आया, लोगों के लिए कत्ल हुआ और 3 दिन के बाद फिर जिंदा होकर आसमान वापस फिर चला गया। तो क्या ये अकीदा गलत है? हाँ, यही कहना चाहता हूँ कि इन अकायद की तबलीग ईसा मसीह ने नहीं की है। यानी मसीह हमारे गुनाहों पर फिदा नहीं हुए? तो क्या वो फिदाई न थे? नहीं, फदाई न थे, हादी थे। खुदा न थे, पैगंबर थे, खालिक न थे, मखलूक थे। खुदाया, आखिर ये इंसान कब आखिल बनेंगे? देखो मेरे भाई, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सच्चाई मालूम करना हो तो मालूम कर लो। अफसोस, काश तुमसे ना मिला होता। नहीं मालूम कि हकीकत से रूबरू हो जाऊं या अपनी जाहिलियत में बाकी रहूं। अरे कुछ तो बताओ, क्या कर रहे हो?
اور اتنی رات گئے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ چپ بیٹھو. اف، ارے کیسے چپ رہوں؟ بولو. خدایا قبول کر، لحظہ دیدار قریب ہے۔ سب رک جاؤ. بابا عیس کو ناصری کے جھوٹے دین کو قبول کرنے اور خدایان روم کی اہانت کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے. بابا عیس، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. چلو آگے بڑھو. عدنان، آؤ آگے. ناصری دین کی پیروی کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. چلو آگے بڑھو. سلام عیس، تمہیں چوری کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، میں نے کچھ نہیں کیا. دنیا، تم کو مسیحی مذہب کی تبلیغ کے الزام پر سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ انہیں. جاؤ. یقین جانو میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے چھوڑ دو. مجھے یہ کیا کرتے ہو؟ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. بار الہ، یہ نذرانہ جاں قبول کر. خدایا
पानी का एक नाचीज कतरा समंदर से मिलकर फना नहीं होता, तो बंदे मोमिन तेरी लिका के बाद नाबूद कैसे हो सकता है। तेरे करम ने साकी हमारे इश्क को हमेशा के लिए जावेदां कर दिया। माना कि तेरे अल्ताफ का शुक्र हम अदा कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बिजात में एक नाचीज जान के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी तेरी अता है, तेरे अल्ताफ का बेकरार सिलसिला। अगर तेरी बारगाह नाज में ये नजराना जहाँ कबूल हो जाए। बारिलाहा आंखें पथरा गई हैं उनके इंतज़ार में, इंसानियत घुट रही है इस अंधेरे में। बारिलाहा फारान पे अहमद का नूर चमका दे, अंधेरा छट जाए उजाला हो जाए, अहमद के नूर का उजाला। आमीन। आली जनाब, मैं एंथोनी। हाँ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। ये दूध लीजिए हुजूर, चरवाहे के पास दूध के सिवा कोई तोहफा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, अभी दुआ है, इसको कबूल कर लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मैंने आपकी मुनाजात सुनी, बहुत मज़ा आया। आप तो औलिया में से मालूम होते हैं, ठीक कहता हूँ? नहीं, बिल्कुल है। अब जैसा चाहे सोचो। किस खुलूस से आप राज़ो न्याज़ कर रहे थे? आली जनाब, मैंने सुना कि आप अपनी मुनाजात में वो अहमद का जिक्र कर रहे थे। आपने कहा उसके दीदार की आरज़ू है। ये अहमद कौन है? तुमने किताब मुक़द्दस पढ़ी है? ना, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो सुनो, मैं तुम्हें किताब मुक़द्दस से कुछ आयत पढ़ के सुनाता हूँ। तस्निया में लिखा है, ये वो बशारत है जिसे मूसा कलीमुल्लाह ने इस दुनिया से रख्ते सफ़र बांधने से पहले बनी इसराइल को सुनाया। उन्होंने कहा, यहवा कोह सीना पर जलवा फरोज़ हुआ, कोह साईद पर ताबिंदा और कोह फारान पर ज़ौफ़शां होगा। कोह फारान पे तजल्ली करने वाला ये नूर और नहीं वही मसीहा होगा जिसकी बशारत हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने दी है, और उसका नाम अहमद होगा। ये फारान कहाँ है? फारान? फारान वही वादी है जहाँ हज़रत इब्राहीम ने हाजर और उनके बेटे इस्माइल को रहाइश दी है, और अहमद आखिरी नबी हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के फर्जंदों में से हैं और वहीं ज़ुहूर करेंगे। यानी ये मुमकिन है कि हम पर खुदा का करम हो और हम उन्हें देखें? बेशक, वो एक दिन ज़रूर ज़ुहूर करेंगे, खुदा का वादा है, लेकिन कब, खुदा बेहतर जानता है। यानी अगर अहमद आए तो अपने जद इब्राहीम की तरह बुतों को तोड़ देंगे? बेशक। बुतों को तोड़ने में कितना मज़ा आएगा। हाँ, ऐसा ही है, मगर टूटे हुए बुत बाज़ औक़ात काबिल मरम्मत होते हैं। ऐसे बुतों को तोड़ना चाहिए जिनकी मरम्मत मुमकिन ना हो।
रोको, इसको रोको। ये कौन लोग हैं? ये मुझे जाना पहचाना लगता है, ठहरो अभी देखता हूँ। ये लोग कौन हैं? अडोनिया मुबल्लिग और इसके साथी मसीह अफराद हैं। अच्छा, इनमें दुनिया कौन है? वो है वो। अच्छा वो अच्छी खुराक तलाश की है, चलो आओ इनकी पिटाई करते हैं। रुको, क्या करो? पत्थर ना मारो। रुको रुको, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। वो खुद मरने वाले हैं, तुम्हें पत्थर मार के क्या मिलेगा? चलो जाओ, अपना रास्ता लो, चलो। अब जबकि वो मर ही रहा है और चंद पत्थर मार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसने हमारे बहुत से लोगों को गुमराह किया है। अफसोस कि हज़रत मूसा की हिदायतों और मेहनतों का तुम पर कोई असर नहीं। इन्हें तो चाहिए कि दुश्मन समझें तो अपने नफ्स को, इन्हें तो चाहिए कि मलामत न करें सिवाय अपने आप को। चंद दिन की दुनिया की छिछोरी लालच में तुमने अपने आप से दुश्मनी मोल ली है और तुम्हें खुद नहीं पता। लो एक सिक्का, हमें पत्थर मारने दो। एक सिक्का, इससे क्या होने वाला है? हमें पत्थर मारने दो, हमें पत्थर मारने दो। मजे चखो, ईसा की पैरवी करते हो। मजे चखो, मजे चखो, लो लो। आए हो तुम पर। एक ही सिक्का दिया है। मारो और पत्थर मारते मारो, खूब मारो, पत्थर मारो, और पत्थर, इसको खूब मारो पत्थर। मारो और पत्थर। हमारे लोगों को गुमराह करते हो, तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। और बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर मारो। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। इनको खूब पत्थर मारो, बड़े पत्थर मारो, बड़ा पत्थर इनका यही अंजाम होना चाहिए। मारो और पत्थर। शर्म करो अपनी जलालत पर रियाकारो। तो और जोर से मारो, इनको छोड़ो नहीं। मारो और जोर से। फेंको, फेंको उसको और मारो, और मारो इसको। या ईसा इब्न मरियम, वाह हो तुम रियाकारों पर कि अपने मतलब की शरीयत चलाते हो और शरीयत की रूह को तुमने बदल डाला और उसके असास व बुनियादों को तुमने तर्क कर डाला। रहमत व अदालत व मुरव्वत, इंसाफ व इंसानियत नाम की कोई चीज़ तुम में नहीं है। कितना मुनाफिकाना तुम्हारा चाल चलन है, किसी गंदे नाले की तरह, ऊपर से हरे भरे, अंदर से निहायत बदबूदार। ए अंबिया और सालिहीन को सता सता के कत्ल करने वालों, उनके कबूर को मिसमार करने वालों, शर्म करो जो उनकी पैरवी का मुनाफिकाना दम भरते हो। उनकी सीरत तो अपना नहीं सकते, जो अपनाते हैं उन्हीं से दुश्मनी करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब। क्या कर रहे हो तुम लोग? बददिल। ए दुनिया,
جناب میکسیمیلین، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ہنسی خوشی مجھے ودا کیجیے۔ نہیں، ایسا مت کہیے، میں آپ کو نجات دلاؤں گا، ابھی کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ آپ قطعی میرے لیے پریشان نہ ہوں، لحظہ دیدار نزدیک ہے، میں آپ سے پہلے منزل پر پہنچ گیا۔ آپ کو عظیم کام کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا، یہاں سے چلے جائیے، محافظین پہنچتے ہی ہوں گے۔ عالی جناب یہاں سے چلے جائیے، چلے جائیے۔ کیسے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ جو اپنے معبود کے ساتھ ہوتا نہ کیسے ہوا؟ آپ سے التجا ہے، چلے جائیے، چلے جائیے۔ خدا حافظ دنیا، خدا حافظ۔ وعدہ دیدار روز محشر۔